Good old Okay, days. coming back to Karachi. I know we like spoke about this a यार little कराची bit. का काफी बैड सीन हुआ है आजकल तो. Yeah, we spoke about this a little bit in the last podcast, but like I really want to get into detail because now we have all the facts and figures, and I have friends in Karachi. मैं ये इनके घर गया था ना, ये voice over man के. I did an interview with him, by the way. Do not watch it if you're under the age of 18. I was actually surprised. Like, you know, his first question just blew me away. तुम full pink होके बस तुम ये थे कि Dude, I wasn't expecting, like I knew इतना direct नहीं. मुझे था कि यार I was expecting it. I was expecting कि अच्छा at some point, you know, he's gonna say some weird कोई point things, मार दिया, you know, कोई here and indirectly there. कुछ पूछ लिया. But dude, when he literally started off with the bang, you know, he's like, okay, so you have, I don't know if I can say it or no, but like, नहीं ना मुझे नहीं लगता अगर उसको तुम सेंसर नहीं करना चाहते तो. okay, I'm gonna say it, I'm gonna censor it, okay, censor this part, like the word, okay. He's like, so I heard that, मैंने सुना है शाविर आपके घर में 15-20 लोग रहते हैं आपकी टीम में. मैंने कहा जी. तो कहता कि shit, I can't even think of the word. Hold on, wait. वो क्या होता है वो जिसमें बहुत सारे लोग वो हाँ okay. अच्छा, I'll start again, okay? So he's like, मैंने सुना शाविर आपके घर में आपकी पूरी टीम रहती है. मैंने कहा जी. कहते 15-20 लोग तो होंगे. मैंने कहा जी. तो आप मुझे अपनी कब बुला रहे हैं? So that was his first question. I was so surprised because that was his first question. I was like, I can only imagine what the rest of the show is gonna be like. Please, Acha, by the way, you know, like Dinky was there. साथ था? Everybody was there, and I just became red because I was like, shit. I wasn't like मुझे लगा था एक दो होंगे इस तरह के और वो कोई भी taunts होंगे. indirect ना कि मतलब अच्छा इस तरह है. Like I wasn't expecting, but it was like the man is awesome. I love the guy. अच्छा है तो फिर तुम कराची का बता. So yeah, I went to his house. Basically, मैं बताने की कोशिश किया. I went to his house and वहाँ पे जो था in the basement, show जो है उनके basement में होता है, and they have like a really good music system. Studio बनाया हुआ पूरा. So we like even after the show we stayed behind and we just, you know, looked at these things, and Mohsen bhai and Hamza bhai, they're big into music, so we were just playing music and all that, everything, like we were doing everything. तो अभी वो मुझे आशिर ने तस्वीर भेजी है, like he posted it on Instagram. उसने अपने इंस्टा पे भी शेयर किया. Where, you know, they're moving their entire studio because their basement started to flood with all the water. And that kind of just shows you the perspective. And by the way, that area is a really high profile area. DHA का phase 6 area है वो. The high profile area, one of the nicest areas in Karachi where you wouldn't expect something like this to happen. और ये सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे जो पानी है. I know a lot of people are complaining कि 3-4 दिन से बिजली नहीं आ रही. Even Ashir and them, they're complaining 3-4 दिन से बिजली नहीं आ रही. तो I realized कि अगर बिजली वो on करेंगे because like the entire city is flooded, उसके ऊपर करंट आ सकता है. लोग जो हैं. So I understand why people are complaining about the बिजली, but there's a very solid reason, believe me, कि why they're not releasing electricity right now in the houses. क्योंकि कुछ भी हो सकता है. कोई नंगी तार खुदा न खास्ता पानी में आए, लिटरली पूरे के पूरे नेबरहुड्स डैमेज हो सकते हैं. काम शुरू हुआ है, पानी बहुत जगहों से निकाल लिया इन्होंने, लेकिन बस DHA में ही अभी इतना रहता है. बहुत लोग अपने बहुत बड़े बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह लिख रहे हैं कि हमने इतनी खुद सारी एफर्ट्स करके हमने खुद अपने आप को इस काबिल बनाया था कि हम लोग अफोर्ड कर सकें महंगी जगह पे पोश एरिया में रहना. इसलिए नहीं था कि हम लोग एंड में आके अपनी चीज़ें छतों पे रख रहे हों या कहीं और संभाल के रख रहे हों कि हमारे स्टूडियोज लोगों के हो गए. Obviously, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो कि you know you live in a high profile area और आपने मेहनत करके पैसे कमा के वो जगह खरीदी है. You live in a high profile area, आपने मेहनत करके पैसे कमा के वो जगह खरीदी है और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हो कि आपका घर फ्लड होना शुरू हो गया. मतलब आप डिसअपॉइंट हो जाते हो ना कि यार मतलब इतनी, फिर वही बात है ना कि लोग ब्लेम ही करते रह जाते हैं और बात खत्म हो जाती है. अच्छा, the saddest part is कि खाली सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम्स चल रही हैं. सिर्फ ब्लेम गेम्स और कोई ब्लेम ले नहीं रहा कि हाँ जी अभी आजकल की गवर्नमेंट को कह दो तो हाँ जी वो पुराने जो थे उन्होंने कोई चीज़ नहीं की थी तो हम लोग क्या कर सकते थे. हाँ जी वो लोग इतना ख़राब करके चले गए थे तो हम लोग क्या करें. पुरानों से पूछो. लेकिन obviously technically speaking, you know, you cannot blame the federal government for this. Like people who know what's going on,
they know not who to blame and who not to blame. And without saying any names, everybody knows who is responsible blame. for these things. हाँ, So ये yeah. भी है. But anyways, like point is कि यार Karachi is in like a really bad shape right now, and something solid needs to happen over there. Literally, like और ऐसा अभी plan और बनना चाहिए. expected है rain कराची में. I know. I saw. अभी expected है rain. अभी जो thunderstorm लाहौर के अंदर भी, by the way, yesterday and day before yesterday there was like a storm, right? And that storm is moving towards Karachi. मैंने सुना है कि कराची जो है below sea level है. Yeah. तो अगर सी में अगर 1 इंच भी पानी ज़्यादा हो जाता है, अब पता नहीं, ये तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता होंगी, मुझे मैं इतनी डिटेल्स में तुम्हें पता है जाती नहीं हूँ. अगर सी लेवल में से 1 इंच भी अगर पानी ज़्यादा हो जाता है ना, तो कराची में प्रॉपर फ्लड्स वाला सीन शुरू हो सकता है, लाइक प्रॉपर सीरियस फ्लड्स. इट्स जस्ट बिकॉज कि वो कराची everywhere जो है around the world, everywhere. I understand that. I heard that from somewhere as well. मैंने खुद personally research नहीं किया तो मैं comment नहीं दूंगा इस पे, लेकिन everywhere else around the world, what I see is happening, especially जो cities होती हैं ना जो कि ocean के पास होती हैं, close to the sea and all, they are taking proper measures जो कि flood prevention measures होती हैं, tsunami prevention measures होती हैं. So ये अभी जो recent tsunamis आए हैं हर जगह पे, just look at a lot of countries, जहाँ पे भी जापान के अंदर आया है, and I can't remember like some other countries, they take preventions. They're building walls that are high enough कि खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है जो कि unexpected है, तो आपकी पूरी सिटी जो है वो डूब सकती है. एंड कराची इज़ अ कोस्टल सिटी, तो वहाँ उस पे जो डैमेज होगा, एंड कराची फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इज़ योर इकोनॉमिक हब ऑफ द कंट्री. इफ कराची ड्राउन्स, द होल कंट्री ड्राउन्स विद इट, लाइक इट और नॉट. that's just how it works. So taking solid measures to make sure that your economic hub is reliable in terms of geography, कि आप उसको किसी तरह सस्टेन कर सको, खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो आप उसको प्रिवेंट कर सको किसी तरीके से. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कराची में जितने लोग रहते हैं, खुदा ना खास्ता द अमाउंट ऑफ पीपल दैट आर गोइंग टू गेट अरेस्ड विद दीज नेचुरल डिजास्टर्स, खुदा ना खास्ता अगर कोई सुनामी आ जाता है, and it's not unlikely that it will happen. It's very likely that it will happen in the next 50 years. So they have to look at the future. The governments have to look at the future and make systems and make sure the city is secure from the coastal line, the coastal belt. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मैंने BBC पे पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और सारी चीज़ों की वजह से हरिकेन्स और जितनी भी सारी चीज़ें आ रही हैं ना, फ्लड्स वगैरह, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, और जो ये हरिकेन्स वगैरह होते हैं ना, ये मॉइस्ट एयर से वो करते हैं, अपनी सारी एनर्जी इनकी बिल्ट होती है, तो जितनी ज़्यादा वो होती है, और पानी ज़ाहिर है वो उसमें होता ही पानी ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें जो है वो सारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत, मैंने सुना है अभी और स्ट्रॉन्ग होंगी. कि अभी हरिकेन्स वगैरह इस दफ़ा जो आ रहे हैं, जो सारे सैलाब, फ्लड्स वगैरह, सारी चीज़ें, जितने भी तूफ़ान, सारे स्टॉर्म्स आ रहे हैं, ये बहुत पिछली दफ़ा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. बिकॉज एंटायर पूरा जो उसका सिस्टम है अफेक्ट हो रहा है, पूरी दुनिया के सिस्टम में अफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट हैपेंस सिर्फ एक का नहीं हो रहा ना. टू द पीपल हु डोंट नो व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज, बेसिकली गर्मी दुनिया के अंदर बढ़ रही है. उससे हो क्या रहा है कि आपके जो आर्कटिक आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं, वो मेल्ट होके ग्लेशियर्स के अंदर आ रही हैं, वो पानी जो है ओशंस के अंदर जा रहा है, ओशंस का वाटर लेवल राइज हो रहा है. जैसे जैसे ओशंस का वाटर लेवल राइज हो रहा है, तो सिटीज़ जो हैं वो नीचे जा रही हैं ओशन से. तो टेक्निकली स्पीकिंग बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं दुनिया में, हर जगह पे समंदरों के बीच में, वो आइलैंड्स विद इन द नेक्स्ट 10 years एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर लेवल इतना आहिस्ता आहिस्ता हाई हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा कि वो सारे ऊपर चल जाएंगे. और सिटीज़ लाइक पाकिस्तान इज, कोई रिपोर्ट आई थी, इवन प्राइम इमरान खान स्पोक अबाउट दिस, कि पाकिस्तान इज one country in the top 10 countries that is the most affected by global warming, and that's why Pakistan, and that's why it is so important to pay attention to the initiative of planting trees and all of this, because it is actually a threat to Pakistan more than anywhere else in the world. Like, we're literally in the top 10 where Pakistan is going to get destroyed first अगर दुनिया और गर्म होना शुरू हो जाती है. जब गए थे ना नॉर्दर्न एरियाज में, हमें जो ड्राइवर अंकल थे ना हमारे, उन्होंने हमें बताया था कि ये दरख्त यहाँ पे पहले नहीं थे,
एक पूरा एरिया था जिस पे दरख्त, मतलब ज़ाहिर है माउंटेन्स में ग्रीनरी तो होती है। उस बंदे ने हमें कहा था ये पहाड़ खाली होते थे, ये सारे पहाड़ जो भरे हैं दरख्तों से, ये इमरान खान के आने के बाद भरे हैं। तो मतलब इमरान खान ने लगवाए हैं। और हम थे कि आपको पता है कि ये इमरान खान ने, कहते हैं हाँ ये क्योंकि हमें पता है ये इमरान खान ने लगवाए हैं, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है आपके एरिया में कौन काम कर रहा है आपको पता होता है, और दूसरा ये कि वो उसने हमने कहा कि मतलब इतने ज़्यादा किस तरह लग सकते हैं, उसने कहा ये इसने उसके आने के बाद लगवाएंगे सारे दरख्त।